आई गेस हम सबको पता है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का सबसे मुश्किल टॉपिक कौन सा है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट? एंड सबसे स्कोरिंग टॉपिक कौन सा है? दैट इज ऑल्सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आज की वीडियो के बाद ये आपका सबसे मुश्किल टॉपिक नहीं, सबसे इजी और फुल मार्क्स स्कोरिंग वेपन बन जाएगा। व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस? अगर मैं सिंपल टर्म में बोलूं तो जो भी पैसे में आप बिजनेस में जो भी पैसा आप बिजनेस में लगा रहे हैं किसी भी काम को करने के लिए, चाहे आप फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हैं, चाहे वर्किंग कैपिटल मैनेज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल ऑर्डर कर रहे हैं, या फिर अपने लेबर को पैसे दे रहे हैं, सो एवरीथिंग requires money, and that money is known as business finance. The finance that is required to run the business or that is required for carrying out the business activities is called business finance. Right? Let's move on to the next. Okay. अब अगर हम बोलें कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, so financial management is concerned with the optimal procurement of the finance and usage of the finance. अब procurement और usage दो चीजें हैं. What is procurement? कि जब भी आप money market से ले रहे हैं, right? When you are taking money either from a bank or from the stock exchange or you're putting your own money into the business, so you have to make sure कि आप जब भी पैसा business में लगा रहे हैं वो कम से कम कॉस्ट पे लिया गया पैसा हो. सेकेंडली, जब भी आप उसे बिजनेस में यूज कर रहे हैं then you are using it in the right manner. So optimal शब्द का मतलब है in the right way, in the right direction, right? Optimal procurement as well as usage of finance. It aims at reducing the cost of the funds procured. जब भी आप funds market से ले रहे हैं कम से कम cost मिलेंगे. If you're taking a loan and you have two options, 10% rate of interest या 8% rate of interest, obviously you would go for an 8% rate of interest because you would like to keep your cost bare minimum. The next is keeping the risk under control. What is keeping the risk under control? जब भी आप मार्केट से पैसा ले रहे हैं, you're borrowing money from the market, from the stock market, from the bank, then you have to take care of this thing कि आपका जो रिस्क है वो बहुत कम हो, क्योंकि अगर आपका रिस्क ज्यादा होगा तो आप इंसॉल्वेंसी की तरफ जाएंगे, यानी कि द बिजनेस would be on the verge of becoming insolvent. That means you will no more be profitable, you will not be able to repay your obligations, right? तो risk control में होना चाहिए, cost कम होनी चाहिए, optimal procurement और usage होना चाहिए, effective deployment होनी चाहिए. Deployment is जब भी आप business में पैसा बांटेंगे अलग अलग activities के लिए use करेंगे तो वो बहुत effective होना चाहिए. Effective यानी कि टाइमली, जिस पैसे को जब 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 पैसे की जरूरत होगी तो टाइमली पैसा उसको मिल जाए, उस जरूरत को बिजनेस में. द अपॉर्चुनिटी शुड नॉट गो अवे फ्रॉम योर हैंड्स. तो ये चीज है इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स. आगे बढ़ते हैं. इट एम्स एट इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड एंड अवॉइड्स द सिचुएशन ऑफ आइडल कैश. तो दोनों ही सिचुएशन हमें अवॉइड करनी है. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कंपनी के पास जब पैसे की जरूरत है तो कंपनी के पास पैसा नहीं है. So it should have enough funds whenever required. Second point, it should avoid a situation of idle finance. Like if the money is there in the business but it's not being put to use, it's not being put into the operational cycle, then that money is a waste, is idle cash, which is not a good situation, right? Money should always be put to work and should earn more money. Okay, moving forward, what is the importance or what is the role of financial management? So हम जैसे बिजनेस स्टडीज में हर टॉपिक का एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, कुछ फीचर्स पढ़ते हैं, वैसे हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में 4-5 बातें जान ली, राइट? ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, राइट? minimizing the cost of procuring the funds, effective deployment of funds, avoiding the situation of idle cash, and avoiding the situation of a crisis where there are no funds available, right? तो ये तो थे फीचर्स. फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है एक कंपनी में, अगर हम बात करें सीएफओ है या फिर जितने भी फाइनेंस टीम के लोग हैं, व्हाट डू दे एक्चुअली डू. बट देन इफ यू टॉक अबाउट देयर इंपॉर्टेंस, द रोल, कि अगर एक कंपनी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी है या बुरी है तो उसका रोल कैसे दिखता है, उसकी इंपॉर्टेंस कैसे दिखती है. सबसे पहला है साइज एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस. तो एक कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स कैसे हैं, व्हाट इज द साइज and what is the composition, like how much of land and property is there, how much are building machinery,
हाउ मच इज देयर फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स, हाउ मच आर देयर व्हीकल्स फॉर। तो ये सारी चीजें, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कौन अफेक्ट करेगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि वही डिसीजन लेते हैं कि कौन सा पैसा किस एसेट को प्रोक्योर करने में लगाना है। सेकेंड इज क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स, यानी कि कितने हमारे पास कैश है, कितनी हमारे पास इन्वेंट्री है, यानी कि हमारा सामान जो हम बेच रहे हैं, कितना हमारे पास रिसीवेबल्स है, यानी कि हमें डेटर्स से कितना पैसा लेना है। ये सब कुछ भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हाथ में है कंट्रोल करना। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अफेक्ट्स दीज एस्पेक्ट्स आल्सो। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज्ड। द लिक्विड एसेट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस, current liabilities costless compared to long term liabilities. Now what does this point mean? There is long term and short term funds to be used. हमें कहां पर जो लोन मैंने 10 साल से ज्यादा टाइम के लिए लिया है, लंबे टाइम के लिए लिया है, वो पैसा मुझे कहां यूज करना चाहिए, और जो पैसा मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया, लेट्स से आई हैव टेकन एन अमाउंट ऑफ मनी, आई हैव टेकन अ लोन एंड आई हैव टू रीपे इट इन 1 year. कैन आई पुट दैट मनी इन द फिक्स्ड एसेट? इट वुड बी अनफेयर फॉर माई बिजनेस। तो यही बात यहां पर ये कहता है कि जब भी लिक्विड एसेट्स की बात होती है, जो लिक्विड एसेट्स होते हैं, यानी कि जो एसेट्स जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस से लेने चाहिए, राइट? ताकि हम पे धीरे धीरे कर रहे हैं, बट हमारे लिए वो पैसा जल्दी से आ रहा है बिजनेस में। एंड करंट लाइबिलिटीज कॉस्ट लेस एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। जितनी भी हमारी करंट लाइबिलिटीज होती हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती हैं फॉर 1 year और लेस, दे ऑलवेज कॉस्ट यू लेस एज कंपेयर टू योर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। यानी कि अगर आपने एक लोन लिया है 1 लाख का और एक लोन लिया है 10 लाख का, तो आपको किस पे ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा? ऑफ कोर्स 10 लाख वाले लोन पे, बिकॉज इट्स गोना बी फॉर अ लॉन्गर टेन्योर। तो करंट लाइबिलिटीज कॉस्ट लेस एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ये सारी चीजें कौन ध्यान में रखेगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये सब बिजनेस का कौन अफेक्ट करेगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अभी तक 3 चीजें क्या क्या अफेक्ट हो रही हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट से? साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस, quantum of the current assets, how much it's going to be cash, inventory and receivables, long term and short term funds to be used. कहां पर हमें long term liability या long term funds यूज करने हैं और कहां पर हमें short term funds यूज करने हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज, फोर्थ इज ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट एंड इक्विटी. अगर आप लंबे समय के लिए पैसा ले रहे हैं मार्केट से अपने बिजनेस की नीड्स को मीट करने के लिए, देन वेदर इट्स गोइंग टू बी डेट जिसपे आप एक फिक्स इंटरेस्ट भरते हैं, या इट्स गोइंग टू बी इक्विटी व्हिच यू आर गोइंग टू रीपे आफ्टर अ सर्टेन टेन्योर और प्रॉब्ली एट द एंड ऑफ द बिजनेस. तो ये इसमें डिसीजन लेना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है एंड इट्स गोइंग टू अफेक्ट इट. Then all the items in the P&L account, profit and loss account, example interest, expenses, depreciation, etc. So whatever you are writing, you all know, आप सबने पढ़ा है 11th में P&L account कैसे बनता है, profit and loss account. तो उसमें आने वाली जितनी भी आइटम्स हैं, वो सारी आइटम्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन से अफेक्ट होती हैं. इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So ultimately it's affecting the profitability of the company. पर जब भी आपसे पूछा जाएगा what is the importance of financial management, तब आप ये 5 पॉइंट लिखेंगे और बोलेंगे कि the financial management of a company affects these aspects, right? And these aspects have to be learned. That's all about the nature, characteristics of the financial management and the importance of financial management. जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका ऑब्जेक्टिव. कोई भी कंपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करेगी? बिकॉज हमें जिन भी लोगों ने कंपनी के अंदर पैसा लगाया है, हमारा एक प्राइमरी गोल या एक प्राइमरी एम क्या है कि उन लोगों की वेल्थ हमें बढ़ानी है, उन लोगों का पैसा हमें मल्टीप्लाई करना है, बढ़ाना है, राइट? एज ए शेयर होल्डर, अगर हम भी आज किसी कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स खरीदते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि शेयर प्राइस बढ़े, और शेयर प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा तो जितनी वेल्थ हमने उस शेयर में लगाई है वो मल्टीप्लाई होगी, वो बढ़ेगी, राइट? सो द प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज रिफर्ड टू वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट. नाउ अब हम ऐसा क्यों करते हैं? हमारा प्राइमरी एम शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज करना क्यों है? तो इसका रीजन है बिकॉज द कंपनी बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स फंड्स आर इन्वेस्टेड इन द कंपनी. उन्हीं का पैसा कंपनी में लगा है, वही इस कंपनी के ओनर्स हैं. तो हमारा एम क्या होना चाहिए कि उनका पैसा जो उन्होंने कंपनी में लगाया है वो बढ़े, एंड द रिटर्न अर्न्ड बाय देम डिटरमाइंस देयर मार्केट वैल्यू एंड प्राइस, राइट?
तो जब जब मार्केट वैल्यू यानी कि द प्राइस ऑफ द शेयर इंक्रीजेज इन द स्टॉक एक्सचेंज, दैट मीन्स द शेयर होल्डर्स वेल्थ इज getting maximized, right? The market price of equity share increases if the benefit from a decision exceeds the cost involved. अब ये वाला पॉइंट क्या है बच्चों कि अगर कोई भी कंपनी एक डिसीजन लेती है, लेट्स से अगर जोमैटो ब्लिंकिट को एक्वायर करता है, टेक ओवर करता है, एंड ब्लिंकिट इज नाउ विद जोमैटो, दिस डिसीजन कैन अफेक्ट जोमैटो शेयर प्राइसेस इन द मार्केट, एंड इफ इट डज इट पॉजिटिवली, अगर पॉजिटिवली शेयर प्राइस बढ़ रहा है जोमैटो का, तो इसका क्या मतलब है कि दिस इज इंक्रीजिंग द रिटर्न्स ऑफ द कंपनी, दिस इज exceeding the cost. All the financial decisions aim at ensuring that each decision is efficient and adds some value. तो जो भी हमारी फाइनेंस टीम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो जो भी डिसीजन लेगी उसको ये मेक श्योर करना है कि हर डिसीजन एफिशिएंट हो, कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आए, एंड वी शुड ऑलवेज ऐड वैल्यू टू आवर डिसीजंस, राइट? हमारे डिसीजंस कंपनी में वैल्यू ऐड करें, अल्टीमेटली शेयर प्राइस की मार्केट वैल्यू बढ़ाएं, ताकि इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़े, एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट इसे ही बोला जाता है. दैट्स इट अबाउट इट. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंशियल डिसीजंस दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस. तो अगर मैं बात करूं कितने टाइप के फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, सो वी हैव 3 मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस. और सबसे पहला फाइनेंशियल डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन. अगर हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करें तो इसका मतलब है कि हम अपना पैसा कौन से टाइप के असेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? हम किस टाइप के प्रोजेक्ट्स या किस टाइप के प्रपोजल्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं. दिस इज व्हाट इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल अबाउट. अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन के भी 2 पार्ट्स हैं. वन इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन विच इज नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट अ कंपनी हैज टू टेक. One is capital budgeting decision and the other one is working capital decision, which is for the current assets. अब यहाँ पर समझेंगे कि capital budgeting decision क्या होता है. Let's say there's a theatre called PVR in Delhi, and PVR increases the seating capacity in all the theatres by 100 seats. ठीक है, they are expanding their business. So, of course, it is a fixed asset that they are buying. They are buying more chairs, more area, more seating capacity, maybe a bigger screen, right? So, it is a capital budgeting decision. अब ये capital budgeting decision कंपनी के लिए क्यों important होता है? Because see, there are certain points about it कि अगर आप ये decision एक बार ले लेते हैं, तो एक तो ये बहुत बड़े amount का decision है. It is something which involves huge amount of funds. So, it involves more risk and it involves bigger stakes. ठीक है, उसके बाद दीज टाइप ऑफ डिसीजंस आर इरिवर्सिबल इन नेचर. इरिवर्सिबल का क्या मतलब है यहाँ पर कि अगर मैंने ये डिसीजंस एक बार ले लिए तो मैं इनको अनडू नहीं कर सकती हूँ. जैसे मैंने आज एक नई गाड़ी खरीदी और मैं बोलूँ कार कंपनी को आप कल ये कार वापस ले लीजिए, तो वो सेम प्राइस पर नहीं लेगा. सो दीज डिसीजंस आर इरिवर्सिबल इन नेचर अनलेस इन्वॉल्व्स अ कॉस्ट, राइट? सो इट इन्वॉल्व्स अ लिटिल कॉस्ट इफ यू वांट टू रिवर्स दीज डिसीजंस. ठीक है, तो these decisions involve huge funds, they are irreversible, they can damage the fortune of a business, they can damage the profitability of the company, the liquidity of company and everything, right? So capital budgeting decisions are very very important और इनको हम डिटेल में अभी करेंगे आगे. उसके बाद working capital decisions involve क्या करते हैं? They target basically deciding the levels of inventory, cash and receivables in the company. Determining the levels of these 3 is basically working capital decision जो हमारे डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है. तो ये दोनों डिसीजंस मिला के इन्वेस्टमेंट डिसीजन है विच टॉक्स अबाउट कि पैसा किस टाइप के एसेट्स में जाएगा. अगर हम नेक्स्ट फाइनेंशियल डिसीजन की बात करते हैं तो नेक्स्ट फाइनेंशियल डिसीजन है फाइनेंसिंग डिसीजन. नाउ प्लीज मेक श्योर कि आपको फाइनेंशियल और फाइनेंसिंग में फर्क समझ आए और आप कंफ्यूज ना होए. तो टॉपिक इज फाइनेंशियल डिसीजंस, बट उसमें सेकंड डिसीजन इज फाइनेंसिंग डिसीजन. अब ये फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होते हैं? दीज डिसीजंस आर कंसर्न्ड विथ वेयर टू टेक मनी फ्रॉम. क्या आप ओनर्स फंड्स की तरफ जाना चाहेंगे, इक्विटी की तरफ जाना चाहेंगे, या अपना खुद की रिटेन्ड अर्निंग्स इन्वेस्ट करना चाहेंगे बिजनेस में, या फिर आप
एक लोन लेना चाहेंगे, बोरोड फंड्स की तरफ जाना चाहेंगे, डेट डिवेंचर्स की तरफ जाएंगे, तो ये डिसीजन लेना इज फाइनेंसिंग डिसीजन। अब यहाँ पर क्या क्या फैक्टर्स होंगे, बेसिकली 2-3 चीज़ें होती हैं जिनका एक कंपनी को ध्यान रखना पड़ता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आपका फ्लोटेशन कॉस्ट। अब ये फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है? द कॉस्ट ऑफ रेजिंग द मनी। जब आप मार्केट से पैसा लेते हो तो उस पैसे को लेने के लिए जो खर्चा होता है उसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करता है, राइट? तो फाइनेंसिंग डिसीजन इज अबाउट डिसाइडिंग बिटवीन द ओनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स। ठीक है, कितना डेट लेना है आपको और कितना इक्विटी लेना है। Of course, every company would try to make an optimum balance between the two, क्योंकि आप जितना ज़्यादा डेट ले लेते हैं उतना ज़्यादा आपकी कंपनी फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व करती है। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। फाइनेंशियल रिस्क एक ऐसा रिस्क है जहां पर यू फेल टू मीट योर ऑब्लिगेशन। तो यही होता है जब आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क ले लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा डेट ले लेते हैं, आपकी ऑब्लिगेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए बोरोड फंड्स ऑलवेज कम विद द रिस्क ऑफ फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू रीपे, which involves lot of financial risk. Whereas owners funds, now अगर आप बहुत ज़्यादा equity लेते हैं तो that also brings certain kind of risk which is the dilution of control. तो हमें दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करना है, राइट? और ये हमारे दो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं। हमारा तीसरा फाइनेंशियल डिसीजन क्या है? वो है डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड डिसीजन बहुत सिंपल है समझना। डिविडेंड्स क्या होते हैं हमें पता है, हम शेयर होल्डर्स को कुछ रिटर्न देते हैं उनके लगाए हुए पैसे पे बिजनेस में, विच इज नोन एज डिविडेंड्स। तो द अमाउंट ऑफ पेमेंट्स, द अमाउंट ऑफ रेगुलर पेमेंट्स, ईयरली पेमेंट्स और हाफ ईयरली पेमेंट्स दैट यू मेक टू द शेयर होल्डर्स एज अ रिटर्न इज डिविडेंड। ठीक है, अब डिविडेंड डिसीजन होता है कि एक कंपनी जो कुछ प्रॉफिट कमा रही है वो कितना पैसा डिविडेंड की तरह शेयर होल्डर्स को देना चाहती है और कितना पैसा रिटेन्ड अर्निंग की तरह कंपनी में ही रखना चाहती है और नहीं देना चाहती उन्हें, क्योंकि कंपनी को लगता है कि वो पैसा कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए या किसी भी एक ऑपरेशन के लिए काम आ सकता है। तो डिसाइडिंग बिटवीन हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी गिवन टू द शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड एंड हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी रिटेन्ड इन द कंपनी फॉर द फ्यूचर इज डिविडेंड डिसीजन ऑल अबाउट, डिसाइडिंग बिटवीन द टू। अब हम समझते हैं, अभी हमने बात की थी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस की, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको पीवीआर का एग्जांपल दिया था कि आप स्क्रीन्स खरीद रहे हैं, सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, तो इट्स अ लॉन्ग टर्म डिसीजन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द 3 फैक्टर्स या व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार सीबीएसई ने पूछा है, आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन है कि आप कैश फ्लो पोजीशंस देखते हैं उस प्रोजेक्ट के। लेट्स से आपके पास 2 प्रोजेक्ट्स के ऑप्शंस हैं, प्रोजेक्ट ए एंड बी। तो आप दोनों प्रोजेक्ट्स में देखेंगे कि ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, जैसे 5 साल का अगर कोई प्रोजेक्ट है, आपने लेट्स से 50 फ्लैट्स बनाने का एक प्रोजेक्ट लिया है अपने हाथ में एंड यू आर बिल्डिंग द 50 फ्लैट्स इन अ रेजिडेंशियल सोसाइटी एंड यू आर लेइंग इट ऑफ। तो आप उसमें देखेंगे कि ओवर द 5 ईयर्स की कितनी कैश फ्लोज, कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है उस प्रोजेक्ट में। एंड हायर आर द कैश इनफ्लोज एंड द स्टेबल आर द कैश इनफ्लोज, देर आर हायर चांसेस कि आप उस प्रोजेक्ट को चूज करेंगे। जबकि अगर बहुत अनस्टेबल कैश फ्लोज होंगे तो आप उस प्रपोजल को सिलेक्ट नहीं करेंगे, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फैक्टर इज रेट ऑफ रिटर्न। अब ये रेट ऑफ रिटर्न क्या है? ये उससे आने वाला रिटर्न है, यानी कि जो आप लेट्स से यू आर इन्वेस्टिंग 100 रुपीज और आपको 10 रुपये रिटर्न आ रहा है, तो दिस इज 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, राइट? तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब हर कोई बिजनेस प्रॉफिट के लिए कर रहा है, तो जितने रिटर्न्स हायर होंगे उतने लाइकली चांसेस हायर हैं कि आप उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। मूविंग ऑन टू द थर्ड एंड द लास्ट फैक्टर विच इज मोर टेक्निकल, द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व्ड। अब ये बहुत बच्चे सिर्फ रट लेते हैं, समझते नहीं है, ठीक है? इसके अंदर हम एनपीवी, एआरआर ये सब कैलकुलेट करते हैं जो ग्रेजुएशन में आता है, जिसमें ये बोलता है कि कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का काम होता है इसके अंदर। अब कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स जब हम लगाते हैं तो उसके अंदर मल्टीपल कैलकुलेशंस होती हैं। मल्टीपल कैलकुलेशंस क्या क्या होती है? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व, कितना पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेट, जो हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो हम कितने इंटरेस्ट रेट पे मार्केट से बोरो कर रहे हैं,
कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट, कैश फ्लोज कितनी है, ज़्यादा है, कम है, ईयरली कितनी है, एवरीथिंग हैज़ टू बी एनालाइज्ड. नेक्स्ट इज रेट ऑफ रिटर्न, जो भी रेट ऑफ रिटर्न उस प्रोजेक्ट का रहेगा, और वो रेट ऑफ रिटर्न भी कितना रिस्की है या कितना स्टेबल है. इन्वॉल्विंग ऑल दिस वी कैलकुलेट एनपीवी, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, पर हमें ये एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए हमें समझना चाहिए कि देर आर टेक्निक्स, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स दैट इन्वॉल्व कैलकुलेशन, विच इन्वॉल्व कैलकुलेशन ऑफ ऑल दिस. So these are the three factors. What are the three factors? You can make an acronym also for this, which can be ICR. ठीक है, तो ICR, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के फैक्टर्स क्या क्या हैं. One is I is investment criteria involved, C is cash flows of the project, R is the expected rate of return of the project. इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं factors affecting capital budgeting decision. This has come in 3 marks also. This has come in 4 marks also कि case study दिया है, पहले identify करना है कौन से decisions की बात हो रही है, फिर हमसे उसके factors affecting पूछे गए हैं. तो 3+1 can be a 4 mark question and this is a very important question. ओके, तो आप समझते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन. हम सबको पता है कि फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है, चूजिंग बिटवीन डेट एंड इक्विटी. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन या दैट अफेक्ट योर फाइनेंसिंग डिसीजन. मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द फर्स्ट फैक्टर इज कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी. अब कैश फ्लोज जितनी ज़्यादा स्टेबल और अच्छी कैश फ्लोज होंगी तो आप उतना ही ज़्यादा किसके टुवर्ड्स जाना चाहेंगे, डेट के टुवर्ड्स जाना चाहेंगे. और अगर कैश फ्लोज अनस्टेबल हैं, लो कैश फ्लोज हैं, कैश फ्लो रिसिप्ट्स आर लेस, देन यू वुड नॉट बी इन अ पोजीशन टू रीपे योर डेट. तो यू वुड गो टुवर्ड्स equity which requires the repayment only once the business is being winding up. ठीक है, तो ये बात सबको समझ आ गई है. आगे बढ़ते हैं रिस्क. नाउ व्हाट इज रिस्क? इफ द बिजनेस रिस्क इज हाई, जो भी आपने प्रपोजल चूज किया था इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, अगर उसमें रिस्क बहुत हाई है, तो अगर रिस्क हाई है तो आप डेट की तरफ नहीं जाएंगे, आप इक्विटी की तरफ जाएंगे, राइट. अगर रिस्क लो है बिजनेस में एंड द बिजनेस हैज गुड रिटर्न्स, लो रिस्क, देन यू वुड गो फॉर डेट. आप डेट ज्यादा रेज करेंगे. अगर मैं फ्लोटेशन कॉस्ट की बात करूं, इट इज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड्स फ्रॉम द मार्केट. ठीक है, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट वो वाला खर्चा है जो मार्केट से पैसा लेने में लगता है, एंड यूजुअली फ्लोटेशन कॉस्ट की जो बात हम करते हैं वो इक्विटी शेयर्स में बहुत हाई होता है, बिकॉज अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराना, डॉक्यूमेंटेशन करना, अपने प्रोजेक्शंस देना, फाइनेंशियल्स देना, इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ कॉस्ट फॉर अ स्मॉल कंपनी. तो फ्लोटेशन कॉस्ट अगर हाई है तो यू वुड गो टुवर्ड्स डेट, एंड फ्लोटेशन कॉस्ट अगर कम है तो यू वुड गो टुवर्ड्स इक्विटी. देन वी हैव कॉस्ट. द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कंपनी इज दिस कॉस्ट. बेसिकली आप जितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, बिकॉज क्या होता है कई बार इंटरेस्ट रेट ऑन द डेट इज सो हाई कि इक्विटी बिकम्स मोर प्रेफरेबल, एंड समटाइम्स द डिविडेंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर वेरी हाई, तो आप डेट की तरफ जाना पसंद करते हैं. उसके बाद है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट. अभी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या क्या है, जैसे कि सैलरीज, इंश्योरेंस, रेंट, वो सारे एक्सपेंसेस जो कंपनी अपना बिजनेस चलाने के लिए पे करती है इन डे टू डे ऑपरेशंस. अगर ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी कंपनी की बहुत हाई है तो कंपनी और फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस नहीं चाहेगी, इसलिए डेट की तरफ नहीं जाएगी. ठीक है, अगर फिक्स ऑपरेटिंग चार्जेस कम हैं तो कंपनी किसकी तरफ जाएगी, डेट की तरफ जाएगी, तब इट कैन रीपे द इंटरेस्ट, राइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फैक्टर विच इज कंट्रोल कंसिडरेशंस. अगर आप अपनी कंपनी का कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करना चाहते हैं, अगर आप अपनी कंपनी को टेक ओवर का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप डेट की तरफ जाएंगे. बट इफ यू कैन बेयर द रिस्क ऑफ योर कंपनी बीइंग टेक ओवर, इफ योर कंपनीज कंट्रोल बीइंग डाइल्यूटेड, अगर कोई और आपके बिहाफ पे डिसीजंस लेगा तो आप इक्विटी की तरफ जा सकते हैं. बट अगर आप कंट्रोल को लेके बहुत कंसर्न्ड हैं तो आप डेट की तरफ जाएंगे. स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट. इफ द कैपिटल मार्केट इज इन अ good condition and the share prices are rising, then you would go towards equity, right. But अगर capital market is in a depressing stage और आपके share prices गिर रहे हैं market में, तो आप debt से पैसा raise करना चाहेंगे. So these are the factors affecting financing decisions. How many factors are there? 7 factors. Again, a very important topic from the NCERT, which will come for CBSE. The first factor is cash flow position of the company. Second is risk. थर्ड इज फ्लोटेशन कॉस्ट, फोर्थ इज कॉस्ट, फिफ्थ इज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट. तो लर्न करने के लिए आसान है, 3 फैक्टर्स कॉस्ट रिलेटेड हैं. ठीक है, 1 इज रिस्क, कैश फ्लो इज कांस्टेंट इन ऑल द केसेस.
then state of capital market and control consideration. Right, moving on to the next topic, which is factors affecting dividend decision. हमने 3 डिसीजंस किए थे और तीनों के ही फैक्टर्स अफेक्टिंग हम कर रहे हैं. ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन किया था. फाइनेंसिंग हमने कर लिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, व्हिच इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन. डिविडेंड डिसीजन मैंने आपको समझाया था कि अगर आपका ये प्रॉफिट है तो कितना प्रॉफिट आप शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं एज डिविडेंड और कितना आप रिटेन्ड अर्निंग्स की तरह कंपनी में रख रहे हैं. दिस डिसीजन इज डिविडेंड डिसीजन. अब इसको कौन कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे. सबसे पहला है कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी. अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन बहुत स्टेबल है, अच्छी है, कैश इज कमिंग इन, कैश रिसिप्ट्स आर हायर, देन यू वुड पे हायर डिविडेंड. राइट, इफ कैश रिसिप्ट्स आर हाई इन द कंपनी, then you would pay good dividends. Right? अगर हम बात करें नेक्स्ट फैक्टर की, जो कि है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स. स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स का मतलब है कि आपकी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, बट इट्स नॉट जस्ट कि आपकी कंपनी ने सिर्फ एक ही फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट कमाया. आपकी कंपनी एक नहीं, लगभग 2-3 साल लगातार अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही है, अर्निंग्स में स्टेबिलिटी है, तो आप किसकी तरफ जाएंगे? गुड डिविडेंड्स. यू विल पे आउट गुड डिविडेंड्स. अच्छा, कंपनी में अच्छे डिविडेंड पे करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप अच्छे डिविडेंड्स पे करते हैं तो आपकी मार्केट गुडविल भी अच्छी हो जाती है, विच लीड्स टू द इंक्रीज इन द शेयर प्राइस, विच लीड्स इन टू द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, विच इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. आगे बढ़ते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स. तो यहाँ पर ये हम देखते हैं कि कंपनी की क्या पॉलिसी है. सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग से कुछ नहीं होगा. कंपनी क्या चाहती है कि वो डिविडेंड्स को स्टेबलाइज कर ले. एक ऐसी पॉलिसी फॉलो करती है क्या कंपनी कि हम इतना % डिविडेंड हर साल अपने शेयर होल्डर्स को देंगे. सेकेंडली, हैज द पोटेंशियल, अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द कंपनी हैज गॉन अप, यानी कि क्या कंपनी की पैसा कमाने का जो पोटेंशियल है, कि जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ गई है, तभी हम डिविडेंड्स में स्टेबिलिटी ला सकते हैं. राइट. नेक्स्ट इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. अगर आप एक ऐसी कंपनी है जो एक स्टार्टअप है और जिसके पास बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं आगे, तो आप कम डिविडेंड देना चाहेंगे और आप ज्यादा रिटेन्ड अर्निंग्स रखना चाहेंगे फ्यूचर के लिए. राइट. तो इफ अ कंपनी हैज गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और प्रोस्पेक्ट्स इन द फ्यूचर, दे वुड पे लेस डिविडेंड्स. बट इफ द कंपनी हैज ऑलरेडी रीच अ गुड लेवल और उनके पास ऑलरेडी बहुत रिसोर्सेज हैं, तो वो अच्छे डिविडेंड्स दे सकते हैं. जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं लाइक ITC, टाटा, they pay good dividends to their shareholders because they already have lot of resources and they do not need to rely upon the retained earnings. आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्टर है अमाउंट ऑफ अर्निंग्स. हम सबको पता है डिविडेंड्स पास्ट और प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के प्रॉफिट से दिया जाता है. तो अगर हमारा डिविडेंड अर्निंग्स से दिया जा रहा है तो सारा गेम ही हमारी अर्निंग्स पे डिपेंडेंट है. सो अमाउंट ऑफ अर्निंग्स इज एक्चुअल अमाउंट, लाइक अमाउंट इज लेस और मोर. So dividends depend upon that. If it's more, the amount is good, then we can pay high dividends. But if the amount is less, we will pay less dividends. Shareholders preference. अब जितने भी shareholders आपके पास हैं, do they really desire a fixed or a minimum amount of dividend? अगर उनको कुछ dividend की उम्मीद आपसे रहती है, तो आपको एक consistent dividend देना पड़ेगा. But if you do not, if your shareholders do not expect a dividend as such, and you've not paid dividend in the past regularly, then you can skip paying higher dividends currently and you can retain earnings. Next is taxation policy of the government. आप सबको पता होगा कि जब भी हमें डिविडेंड्स मिलते हैं तो उस पे टैक्स डिडक्ट होके हमें डिविडेंड्स मिलते हैं. किसी भी अर्निंग पे टैक्स लगता है, वैसे ही डिविडेंड भी एक अर्निंग है और उस पे भी टैक्स लगता है. ठीक है. इफ द टैक्स रेट on the dividends is high, then we would pay less money as dividends and we would give more money to the shareholders as capital gain and we would try to increase the share price. But अगर टैक्स जो है, टैक्स रेट जो है डिविडेंड पे लगने वाला वो बहुत कम है, तो we can pay higher dividends to the shareholders. अगर हम स्टॉक मार्केट रिएक्शन की बात करें, if the stock market is in the bullish condition, यानी कि अगर स्टॉक मार्केट जो है पॉजिटिव दिख रही है, स्ट्रॉन्ग दिख रही है, then of course you can pay गुड डिविडेंड, बिकॉज अगर आप जैसे ही डिविडेंड पे करेंगे तो इट विल हैव अ स्पाइरल इफेक्ट और आपका शेयर प्राइस और अच्छा बढ़ जाएगा, जिससे शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइज होगी एंड दे वुड हैव अ बेटर कॉन्फिडेंस ऑन योर कंपनी एंड देयर वुड बी मोर शेयर होल्डर्स ज्वाइनिंग योर कंपनी. ठीक है. अगर स्टॉक मार्केट बियरिश फेस में है, विच मीन्स इट इज रिफ्लेक्टिंग अ नेगेटिव आउटलुक राइट नाउ, तो डिविडेंड्स
कम देंगे तो भी शेयर होल्डर्स वुड रिमेन इंडिफरेंट टुवर्ड्स इट, बिकॉज एनी हाउ द स्टॉक मार्केट इज डिप्रेसिंग अभी. ठीक है. नेक्स्ट इज एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट. अगर आप एक अच्छी कंपनी है, इफ यू आर लाइक अ बिग कंपनी, you have easy access to the stock market, you can issue your stocks whenever you wish, like, then of course you can pay a good amount of dividend, a higher amount of dividend. But if a company is small, then they can retain those profits as retained earnings, and they can pay less dividend because they would need more money for the future prospects. They do not have easy access to the capital market. वो बार बार capital market जाकर पैसा raise नहीं कर सकते बड़ी companies की तरह. नेक्स्ट इज लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स. तो हमारा जो कंपनीज एक्ट 1956 है, या यू कैन से द लेटेस्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, दैट आल्सो प्लेसेस certain restrictions on the amount of dividend that a company is allowed to give. It cannot give dividends as per its wish completely. Next is contractual constraints. अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन लिया है, या किसी और कंपनी के साथ कोई मर्जर किया है या कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, देन दे कैन प्लेस सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस इन दैट कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड. तो हमारा डिविडेंड डिसीजन उस कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंडेंट हो जाएगा. सो दिस वाज द लास्ट फैक्टर, व्हिच वाज द 11th फैक्टर, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स. This is how we have covered 11 factors affecting the dividend decision. I hope this much is clear to you. Part 1 ends here. Now, in the next video, we will see part 2. Until then, please like, subscribe, and share the videos of Ashima Commerce channel. And please, in the comment section, put your doubts. I will be there to reply. I'll be there to guide you. Thank you.